functions and textual functions. And keep it in mind that linguist Michael Halliday calls them meta functions. Michael Halliday call these is meta functions of language. These are the meta functions of language, and as I have told you already, that several micro functions lead towards macro function. So the one which is capable of describing one or more other functions is a meta function, according to Michael Halliday. The function which is capable of describing one or more than one functions, micro functions, is known as the meta function. So the one we have here is ideational function. Ideational function. So we conceptualize the word for our own benefit and that of others. आइडिएशनल फंक्शन का मतलब ये है कि हम वर्ड को अपने बेनिफिट के लिए और दूसरों की बेनिफिट के लिए हम वर्ड को क्या करते हैं, कंसेप्चुअलाइज करते हैं. ठीक है. फिर है द इंटरपर्सनल फंक्शन. द इंटरपर्सनल फंक्शन. इस पे कल भी मैं बहस कर चुका था कि इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज इज अ पर्सनल मीडियम. लैंग्वेज क्या है? सेंस ऑफ आइडेंटिटी इज देयर इन लैंग्वेज. दिस इज द इंटरपर्सनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. सो देयर इज सेंस ऑफ आइडेंटिटी. So there is the way we bring ourselves into being linguistically is our personal, interpersonal function. The way we bring ourselves into being linguistically is this particular function. And another one is the poetic function. As I have already told you, the word poetic does not here means the ability to write poetry. इसका यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि the ability to write poetry. पोएट्री राइटिंग की जो एबिलिटी है, इसका ये मतलब नहीं है कि पोएटिक फंक्शन से ये है, बट इट मींस द एबिलिटी टू ब्रिंग वर्ड इनटू बीइंग एन एरिया ऑफ प्ले. कि हम ये एबिलिटी है कि हमने दुनिया को एन एरिया ऑफ प्ले जो है वो बनाया हुआ है. So this is because of language, and that function is known as the poetic function. The ability to bring the word into being an area of play. So formal linguistics describes the mental rules which govern linguistic behavior. जो formal linguistics होते हैं, that describe the formal linguistics describe the mental rules which govern linguistic behavior. इस तरह mental rules जो हैं वो describe करते हैं, that govern the mental behavior, linguistic behavior. Discourse analyst जो हैं, जो statistics stylistics हैं, they concentrates on the functional level. देखे एक aspect है functional aspect of language. जो stylisticians होते हैं, stylistics as a field of linguistics, जैसे कि previous lecture में मैं इस पे बात कर चुका हूँ. stylistics हैं, discourse analysis हैं, तो they that is their concentration is on the functional level. तो उनका कंसंट्रेशन फंक्शनल लेवल पे होता है, and are much more concerned with the specific use we make of language. ज़्यादातर कंसर्न ये होता है कि the specific use we make of language. Another one is the textual function. So according to Michael Halliday,
It is the construct to construct text out of utterances and writing using language behavior, to bring text into being. देखें टेक्सचुअल फंक्शन ये है कि लैंग्वेज के जरिए हम we bring text into being. ठीक है, हम टेक्स्ट जो है वो कंसीडर करें, खवा वो वर्बल डिस्कोर्स हो या टेक्सचुअल जो रिटन डिस्कोर्स हो. ठीक है, ये किस्म की ये भी लैंग्वेज की टेक्सचुअल फंक्शन है. और हॉलिडे जो है इसके बारे में बताता है कि इट इज टू कंस्ट्रक्ट आउट ऑफ अटरेंसेस या राइटिंग यूजिंग लैंग्वेज टू ब्रिंग टेक्स्ट इनटू बीइंग. अटरेंसेस और राइटिंग के जरिए हम क्या लैंग्वेज को यूज करते हैं, लैंग्वेज को टेक्स्ट जो है वो हम तख्लीक करते हैं, पैदा करते हैं. So when we speak or write, we do not normally confine ourselves into single phrases and sentences. जब हम बोलते हैं, जब हम लिखते हैं तो हम सिंगल फ्रेजेस और जो है सेंटेंसेस को अपने आप को बाउंड नहीं करते. We string these together to make a connected sequence. लेकिन हम इनको मुख्तलिफ फ्रेजेस को, मुख्तलिफ linguistic utterances को, sentences को हम स्ट्रिंग करते हैं. ठीक है, कि हम क्या कनेक्टेड सीक्वेंस डिस्कोर्स को वजूद में लाते हैं, जो कनेक्टेड सीक्वेंस होते हैं. देखें डिस्कोर्स में असल में एक ये बात जो है ये जहन में याद रख लो कि डिस्कोर्स में इस तरह होता है ना कि कनेक्टेड सीक्वेंसेस ऑफ सेंटेंसेस होते हैं या ऑफ फ्रेजेस होते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो है एक डिस्कोर्स, छोटा सा डिस्कोर्स में लिख चुका हूँ, आप इसको जरा देख लो. One day, a lady came into our street. She had a brightly colored bonnet which seemed out of place there. It had 3 feathers and a red and a broad blue ribbon which fluttered gaily in the breeze. अच्छा, यहाँ पे एक लिटिल स्टोरी है और आप इसमें देख ले जितनी भी यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, that seems to be about this little story. कोई सरप्लस नहीं है. और मुख्तलिफ इस तरह जो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज हो गए हैं कि एक जुमला दूसरे के साथ एक खास रबत के साथ जो है वाक़या है. इस तरह हम डिस्कोर्स इस तरह बनाते हैं. One day a lady came into our street. ये टॉपिक सेंटेंस हो गया. देखें जो रिटन डिस्कोर्स होता है इसमें जो थीमेटिक सेंटेंस जिसको हम कहते हैं या जो पैराग्राफ की बिल्कुल जो अक्सर रूटीनली वो मिड में भी हो सकती है, लेकिन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफन वो लास्ट में भी आ सकती है, मिड में भी आ सकती है, लेकिन जनरली द वेरी फर्स्ट सेंटेंस एंड व्हिच हैज द थीम ऑफ द होल स्टोरी, द होल पैराग्राफ. तो पैराग्राफ की जो सेंटेंस फर्स्ट होती है जो जिसमें थीम होती है इसको हम थीमेटिक सेंटेंस कहते हैं या इसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं. फिर कनेक्टिंग सेंटेंसेस की एक सीक्वेंस होती है. कनेक्टिंग सेंटेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आखिर में जो है इस तरह हम बॉडी बनाते हैं. फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें one day a lady came into our street. तो ये टॉपिक हो गया. She had a brightly colored bonnet. तो इसका यहाँ पे मतलब है कि brightly colored bonnet किसका था? मतलब ये she जो हमने यूज किया हुआ है
ये लैडी के लिए हमने यूज किया हुआ है, इस तरह है ना, एक लॉजिक है इसमें, जरा देख लो। ब्राइटली कलर्ड बॉनेट शी का है, मतलब लैडी का है, तो यहाँ पे which हमने यूज किया हुआ है एज अ ट्रांजिशन, which seemed out of place there, क्या आउट ऑफ प्लेस था, ये ब्राइटली कलर्ड बॉनेट, द which जो है ये ब्राइटली कलर्ड बॉनेट को इस तरह, अच्छा, it had 3 feathers and a broad blue ribbon, तो ये क्या है, बॉनेट की 3 feathers है और ब्रॉड ब्लू रिबन है, क्या है, ब्रॉड ब्लू रिबन किसका था, बॉनेट का था, तो which fluttered gaily in the breeze, जो कि ब्रीज में गैली फ्लटरिंग कर रहा था, तो अब देखो ये which किसको रेफर होता है, नॉट बॉनेट, ब्रॉड ब्लू रिबन को रेफर हो गया है, तो ये किस्म की लैंग्वेज की एक फंक्शन है जिसकी वजह से हमने इसमें इतना लॉजिक जो है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि हम लिटिल स्टोरी को सही तरीके से समझ पाते हैं कि कौन सा ट्रांजिशनल डिवाइस जिसकी यूज हो गई है ये किस चीज को रेफर होता है, ठीक है। तो अब देखें ना जरा, तो ये जितनी भी जो वेच है या जितनी भी है जो रेफरेंसेस है, जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस है, जो भी है, तो वो एक दूसरे के साथ एक खास रबत पे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन, टेक्सचुअल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के, लैंग्वेज मुख्तलिफ वर्ड्स को हम एक एहतियात के साथ मुख्तलिफ लॉजिकली हम इस तरह यूज करते हैं जो हमें मीनिंगफुल डिस्कोर्स देते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट क्रिएट होते हैं। So a number of words and phrases here in the story indicate that the sentences belong to the same little story about the lady who visited my street. Okay, so the sentences are cohesive and from recognizable text. ये इनमें इस तरह हम कहते हैं ना, इसमें कोहेजन है, इंशाल्लाह कोहेजन और कोहेसिव डिवाइसेस और कोहेरेंस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि किस तरह जो है हम हमारा रिटन डिस्कोर्स जो है ये लिवली होगा, ये ऑर्गेनिक होगा। बहुत कुछ ज़्यादा खबर हो कमा जब रिटन डिस्कोर्स बता सही पदे के वो यूनिटी, पदे के वो कोहेरेंसी, जैसे माने जिस सारे बाबा माखेले हो खेटे पर रुशकेले हो लगे ये वो पटखेले गड़बड़ माने, इट शुड बी ऑर्गेनिक होल, इट शुड बी यूनिफाइड होल, ठीक ना। ओके, सो द स्टडी ऑफ टेक्सचुअल कोहेजन इसको हम कहते हैं ना, टेक्सचुअल कोहेजन। सो ये जो टेक्सचुअल कोहेजन की जो स्टडी है, द वे इन व्हिच वर्ड्स रेफर टू बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड आर सब्स्टिट्यूट फॉर अदर्स इज नाउ क्वाइट डेवलप्ड। ये जो टेक्सचुअल कोहेजन की जो स्टडी है अब जो है ये काफी डेवलप हो गई है। टेक्सचुअल कोहेजन इस तरह है कि किसी तरीके से ये जो वर्ड्स हैं दे रेफर बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, तो ये किस तरह होते हैं, आर सब्स्टिट्यूट वन फॉर द अदर, सो दे आर नाउ क्वाइट डेवलप हैं। जैसे कि एक सेंटेंस मैं बता रहा हूं, अ कैसल इज अ पीस इन चेस। चेस में, चेस की जो गेम होती है इसमें मुख्तलिफ पीसेस होते हैं, ठीक है। एक पीस का नाम क्या है, कैसल है, सपोज एक पीस का नाम कैसल है, नॉट सपोज, इट इज ट्रू अबाउट, इट इज a castle, a piece in the chess game, chess, do you know chess? Okay, so this is no one adventure, एक जुमला है कैसल इज अ पीस इन चेस, तो हमारा ख्याल किधर गया, पीस इन चेस की तरफ गया। और अगर मैं इस तरह कहूं देयर इज नो वन एट विंडसर, विंडसर जगह का नाम है, कोई विंडसर पे इस तरह कोई कैसल नहीं है, तो इसका मतलब है विंडसर वाला जो कैसल है और चेस का जो पीस है दोनों में कोहेजन बनिश्ता, दोनों में we lack cohesion in both of them, but one cohesion sta, so your castle, the chess